साइंस ऑफ नेट कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है सीपीयू। सीपीयू जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, पतली शब्दों में इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड करता है आपके सीपीयू के स्पीड पे। जितना स्पीड का आप सीपीयू होगा उतना स्पीड कंप्यूटर काम करता है, मतलब द स्पीड ऑफ द सीपीयू डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। अब हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये फिगर है सामने में, जिससे दिखता है कि सीपीयू का बनावट कैसा होता है, सीपीयू दिखने में कैसा लगता है। जो आज सीपीयू जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये सीपीयू मार्केट में अभी तो आपको लगा, लेकिन बहुत समय इस पर बदलाव आते चला गया। जब हम बात करते हैं 1964 से इसके उत्पत्ति का, तो 1964 में सबसे पहले IBM रिलीज द 32 बिट IBM सिस्टम 360 विथ मेमोरी प्रोटेक्शन। उसके बाद 1966 में बिस्कॉम मैसेटोसी सीमा बिगिंस 3 चिप CPU that could later evolve into a single chip Intel 404 microprocessor. 1968, Sharp engineer Tadashi Sasaki conceives single chip microprocessor, which he discussed with Businesscom and Intel. In the year 1969, Intel 404's Intel initial design led by Ted Holf and Businesscom Masatoshi Shima. In 1970, Intel 404's design completed by Intel's Federico Fages and Businesscom's Masatoshi Shima. Then in the year 1971, NEC releases the PD708, a 2-chip 4-bit CPU. In the year 1972, NEC releases single-chip 4-bit microprocessor. Then in the year 1973, NEC releases 4-bit combining 2 microprocessors. In the year 1973, Toshiba releases TLC12, the first 12-bit microprocessor. Then in the year 1974, Intel releases the Intel 8080, an 8-bit microprocessor designed by Federico Fages and Masatoshi Shima. In the year 1975, MOS Tech released 8-bit MOS technology 6502, the first integrated processor to have an affordable price of $25. In the year 1975, Panafocom releases the MN1610, the first commercial 16-bit single-chip microprocessor. Then in the year 1978, Geelong introduced the 8-bit Geelong Z80 designed by Federico Fages and Masatoshi Shima. In the year 1977, the first 32-bit VAX Sol, a VAX 11780 microprocessor launch. In the year 1978, Intel introduced the Intel 8086 and 8088, the first x86 chips. Then in the year 1979, Motorola introduced the Motorola 68000, a 16-bit, 16 and 32-bit microprocessor. In the year 1981, Stanford MIPS introduced one of the first reduced instruction set computing RISC design. Then in the year 1982, Intel introduced 80286, first Intel processor that could run all software written for preprocessor, that is 8086 and 8088. In the year 1984, Motorola introduced Motorola 68020, which enabled 32-bit instruction set. In the year 1985, Intel introduced 80386, which adds a 32-bit instruction set of microprocessor. In the year 1985, ARM architecture introduced. In the year 1989, Intel introduced 80486 microprocessor. This is the very popular microprocessor. ये बहुत ही प्रचलित हुई थी। उसके 1992 में Hitachi introduced super fast architecture, which it provides the basis of ARM thumb instruction sets. In the year 1995, Intel introduced the Pentium Pro, which became the foundation for the Pentium 2, 3, Pentium M and Intel all architecture. In the year 2000, AMD hits 1 GHz with its Athlon microprocessor. Again in the year 2000, Analog Device introduces the Blackfin architecture. In the year 2002, Intel releases Pentium 4 with hyper-threading, the first modern desktop processor to implement simultaneous multi-threading (SMT). In the year 2003, AMD releases Athlon 64, the first 64-bit consumer CPU. And again in the year 2003, Intel introduces Pentium M, a low-power mobile derivative of the Pentium Pro architecture. In the year 2005, AMD announces the Athlon
processor with dual core processor. Then in the year 2006, Intel introduces the core line of CPU based on modified Pentium M design. In the year 2008, about 10 billion CPU produced. In the year 2010, Intel introduces i3, i5, i7 processor. 2011, AMD announces world's first 8-core CPU for desktop PC. Then finally, in the year 2017, AMD announces Ryzen processor based on the Zen architecture. This is the story of the CPU, how CPU developed, किस तरह से CPU आया, कैसे मार्केट में आया, किस तरह से आज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं आई टेक्नोलॉजी, i4, i3, i7 तक का हम लोग प्रोसेसर यूज़ करते हैं, i10 भी आ चुका है। तो जितना स्पीड हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा उतना स्पीड हमारा कंप्यूटर काम करेगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं CPU कंपोनेंट्स एंड वर्ड्स, कैसे CPU काम करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले ये फिगर को ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया क्या क्या कंपोनेंट्स है CPU के और कैसे CPU काम करता है। तो बेसिकली CPU के काम को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला ALU, दूसरा CU, तीसरा रजिस्टर या मेमोरी यूनिट और फोर्थ है बसेस। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ALU। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि जितने भी मैथमेटिकल गणना है वो ALU के द्वारा होता है। ALU को कोर ऑफ द CPU भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर कितनी गति से काम करेगा या कितने रूप या पूर्ण रूप से कोर पर डिपेंड करता है। इसलिए कोर जब हम बात करते हैं CPU सिंगल कोर या डुअल कोर का है, यह पता कर, इसका मतलब ये होता है कि ALU से है। मतलब कोई ALU डिपेंड करता है कि जितने भी मैथमेटिकल गणना है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। दूसरा पार्ट हमारा CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ऑल टाइप्स ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है। इसका काम इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शन या डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में दूसरी यूनिट को ट्रांसफर करने का करता है। इसके लिए यह सबसे पहले मेमोरी रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और फिर उन्हें इंटरप्रेट करने के बाद निर्देशों के अनुसार डिफरेंट यूनिट्स को सेंड कर देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा रजिस्टर या मेमोरी। मेमोरी यूनिट CPU की टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया है। यहाँ प्रोसेसिंग के लिए आए डाटा या निर्देशों को स्टोर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन को बीट्स की फॉर्म में रखता है। CPU में रजिस्टर अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जैसे कि 2 बिट रजिस्टर हो गया, 4 बिट रजिस्टर हो गया, या फिर हम बात करते हैं 8 बिट रजिस्टर का। इसी मेमोरी यूनिट में रखे डाटा को कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के लिए ALU तक ले जाता है। ये मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती, बल्कि इसे CPU में को लोकल स्टोरेज दिया जाता है, जो प्रोसेस किए जा रहे डाटा को होल्ड करके रखती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रजिस्टर का। तो पहले MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जब कंप्यूटर मेमोरी से डाटा प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास जाता है तो उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए MAR का प्रयोग किया जाता है, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR के बाद आता है MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर। यह मेमोरी से रिसीव डाटा या इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। तीसरा है PC मतलब प्रोग्राम काउंटर। ये रजिस्टर आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। नेक्स्ट इज AR रजिस्टर, जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जब कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन CPU द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है, अर्थात उस प्रोसेस का जब रिजल्ट निकलता है तो AR ही उसे होल्ड करके रखता है। अब जो टॉपिक की बात कर रहे हैं सिस्टम बसेस पे। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच डाटा को ले जाने के लिए सिस्टम बस का उपयोग होता है। ये केबल और कनेक्टर से बना एक पाथवे है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच डाटा और कंट्रोल सिग्नल का आदान प्रदान हो सके। इसके लिए ये बसेस तक कम्युनिकेशन पाथ के रूप में कार्य करती है। डाटा बस जो सिस्टम बस जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस निर्देशों या डाटा को एड्रेस ले जाता है। देन डाटा बस मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डाटा को ले जाती है। और लास्ट में कंट्रोल बस नियंत्रण संकेतों को ले जाने का काम करती है। CPU के प्रकार, मतलब CPU कितने प्रकार के? पहला है सिंगल कोर CPU, दूसरा है डुअल कोर CPU, तीसरा है क्वाड कोर CPU। सिंगल कोर CPU, जैसा कि आप सामने एक फिगर है उसको देखिए, सिंगल कोर CPU का बनावट किस तरह से है। सिंगल कोर CPU का अर्थ है कि एक समय में सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। यह पुराना CPU है जिससे पहले उपयोग होता था, लेकिन इसका लो परफॉर्मेंस होने के कारण खास करके मल्टीटास्किंग ऑपरेशन में ये बहुत ही स्लो काम करता था। सिंगल कोर होने के कारण एक ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद ही दूसरे का काम होता था। इस प्रकार की CPU की परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द क्लॉक स्पीड, अर्थात जिसकी पावर का मेजरमेंट ही क्लॉक स्पीड से होता था। मतलब इस तरह का CPU पहले उपयोग होता था जो कि बहुत ही स्लो था, खासकर मल्टीटास्किंग के लिए।
डुअल कोर सीपीयू, इसका फिगर में इसका ध्यान से देखेंगे इस तरह का डुअल कोर सीपीयू का बनावट है। डुअल कोर मतलब हो गया सीपीयू के 2 कोर होते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें 2 प्रोसेसर की ताकत होती है, हाई परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन विद सिंगल कोर सीपीयू। लास्ट इज क्वाड कोर सीपीयू। क्वाड कोर सीपीयू, ये फिगर देख रहे हैं, क्वाड कोर सीपीयू का बनावट कैसा है। क्वाड कोर सीपीयू इसका मतलब हो गया कि 4 कोर वाली सीपीयू होती है, अर्थात प्रत्येक कोर स्वतंत्रता के साथ किसी प्रोग्राम को प्रोसेस और एग्जीक्यूट कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम का वर्कलोड 4 सीपीयू के साथ स्प्लिट अर्थात विभाजित हो जाता है। इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेशन बहुत ही अच्छा होता है और सीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाई स्पीड सीपीयू है और अधिकांश जो तेज गति से कंप्यूटर जो काम करते हैं उसमें क्वाड कोर प्रोसेसर लगे रहते हैं। सीपीयू मॉडल के अंतर्गत हम लोग पहला चर्चा करते हैं पेंटियम क्लास का। इससे पेंटियम आ गया, सेलेरॉन हो गया, जियोन हो गया। 1993 में इंटेल ने इसे लॉन्च किया था। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सीपीयू था और 2006 में जब कोर लाइन प्रोसेसर आया तो इसका प्रयोग बहुत ही कम होने लगा। उसके बाद हम बात करते हैं एएमडी की। एएमडी के अंतर्गत जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ, एथलॉन, ड्यूरॉन, सिम्प्रॉन, ऑप्ट्रॉन, फिनॉन, राइजेन। उपरोक्त जो भी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी एएमडी है, एएमडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इंटेल के बाद जो कि प्रोसेसर बनाती है। उसके बाद उन्होंने एएमडी ने सबसे पहला पेंटियम कंपेटेबल सीपीयू बनाया जो कि K5 था, 1994 में ये पेश किया गया। और उपरोक्त जो भी प्रोसेसर देख रहे हैं वो एएमडी द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कोर क्लासेस प्रोसेसर, जिसमें कि i3, i5, i7, i9, i10, i11 इस तरह के प्रोसेसर आए मार्केट में। जब कोर क्लास प्रोसेसर आया तो सिस्टम का स्पीड बहुत ही तेज गति से बढ़ गया, क्योंकि कोर क्लास जो प्रोसेसर की जब पहला हम बात करें i3 में 4 कोर होते थे और 4 थ्रेड पर आधारित ये प्रोसेसर था। i5 में भी 6 कोर होते थे और 6 थ्रेड होते थे। उसके बाद i7 आया जिसमें कि 6 कोर प्लस 12 थ्रेड होते थे, जिसके कारण ये हैवी सीपीयू है या फिर मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीपीयू i7 आता है। उसके बाद हम बात करते हैं i9 का। i9 में भी 10 कोर और 20 थ्रेड है। उसके बाद i10 और i11 ये भी बहुत ही हाई स्पीड सीपीयू है। ये बताने का कारण यह है कि जब आप मार्केट में सीपीयू लेने जा रहे हैं, प्रोसेसर खरीदने जाते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह का प्रोसेसर हम लें मार्केट में। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अभी जो चल रहा है वो कोर क्लास का सीपीयू चल रहा है, तो हमको i3 लेना है या i5 लेना है, i7 या i9 या i10, i11 डिपेंड हमारी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से हमको सीपीयू लेना चाहिए। इसलिए बताया गया कि इसके यदि आप इसके बारे में जानकारी, सीपीयू के मॉडल के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपको सीपीयू खरीदने में कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे सीपीयू ले सकते हैं जो आपके ज़रूरत के हिसाब से आप सीपीयू परचेज करके अपने कंप्यूटर के स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। और कंप्यूटर आपका परफॉर्म कैसा करेगा वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू कैसा लगा रहे। अब हम लोग कुछ उपयोगी बात कर रहे हैं जिसमें कि कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्यूटर में किस तरह का सीपीयू लगा हुआ है। इसमें 2 माध्यम है। पहला माध्यम है कि हम विंडो की और पॉज बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो सिस्टम की पूरी जानकारी हम नई विंडो में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके हमको प्रोसेसर का नाम आ जाएगा, हमारा प्रोसेसर का मॉडल आ जाएगा, मॉडल नंबर आ जाएगा, कितना नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं उस सीपीयू में, वो आपका डिटेल जानकारी दे देगा। दूसरा तरीका है विंडो मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर रन पे जाएंगे और रन में MSINFO32 कमांड टाइप करेंगे। ध्यान रखेंगे MSINFO32 कमांड टाइप करेंगे तो आपका सिस्टम का डिटेल खुल जाएगा। वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में किस तरह का सीपीयू लगा हुआ है। तो सीपीयू के जो हमने बताया था कि सीपीयू के प्रकार जो थे वो कोर और थ्रेड, 2 चीज़ का उपयोग हो रहा था सीपीयू में, कोर और थ्रेड। तो ये कोर और थ्रेड होता क्या है? तो कोर सीपीयू के एक पार्ट को कोर कहा जाता है। ये प्रोसेस एजुकेशन के लिए जिम्मेवार होता है। सीपीयू थ्रेड क्या होता है? एक कोर का लॉजिक पार्ट है। सीपीयू थ्रेड एक कोर का लॉजिक पार्ट है। जिस प्रकार सीपीयू के भाग के कोर को कोर कहा जाता है, उसी प्रकार एक कोर्स के पार्ट को थ्रेड्स कहते हैं। एक प्रोसेस में थ्रेड्स की संख्या कोर की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं सीपीयू काम कैसे करता है। तो हाउ डज द सीपीयू वर्क? फर्स्ट प्रोसेस इज फेच, सेकंड इज डिकोड, थर्ड इज एग्जीक्यूट। हम फेच के बारे में बात करते हैं। इस प्रक्रिया में सीपीयू के द्वारा इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया जाता है। ये निर्देश बाइनरी नंबर की सीरीज में होते हैं और रैम से सीपीयू को दिए जाते हैं।
CPU एक निर्देश को सीधे रिसीव नहीं करता, बल्कि पहले मेमोरी में उस इंस्ट्रक्शन के कई सेट्स में अलग अलग किए जाते हैं, यानी एक बड़े ऑपरेशन के स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसके बाद CPU एक एक करके निर्देश को उन टुकड़े को प्राप्त करता है। अब जब एक निर्देश कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो CPU कैसे पता करे कि पहले प्राप्त किए गए इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा। ऐसा करने के लिए एक प्रोग्राम काउंटर PC होता है जो निर्देशों को होल्ड रखता है, यानी CPU को बताएगा कि ये निर्देश का पहला भाग है और अब उसे दूसरे भाग को प्राप्त करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को एक रजिस्टर में स्टोर किया जाता है जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद प्रोग्राम काउंटर उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस को रेफरेंस देने के लिए उसे जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इज डिकोड। एक बार CPU उन इंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुली रिसीव करके उन्हें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IC में स्टोर कर लेता है, जिसके बाद डिकोड की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऐसा करने के लिए एक निर्देश को एक विशेष सर्किट पहले ले जाता है जिसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर कहते हैं। वहाँ उन निर्देश को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उस सिग्नल को CPU के डिफरेंट पार्ट में सेंड किया जाता है ताकि उन पर कार्य किया जा सके। लास्ट पॉइंट जिस पर हम बात करें एग्जीक्यूट। अंत में डिकोड हुए इंस्ट्रक्शन को निष्पादित किया जाता है, जिसके बाद उसे आउटपुट के रूप में CPU रजिस्टर में स्टोर किया जाता है ताकि डिकोड होकर आने वाले अन्य निर्देश उन्हें रेफरेंस कर सके। इसके बाद निर्देश की मांग के अनुसार या तो उसे आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाता है या फिर सिस्टम में सेकेंडरी डिवाइस पर सेव कर दिया जाता है। आज हम लोगों ने कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU पर चर्चा किया। अब मैं लोगों से यही आग्रह करूं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें इस पर, और इस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।